you ठीक है, this is like better or you better है? नहीं, the first one is better, sir. Like this. हाँ. So then it feels like you're talking to someone. नहीं तो आप नीचे लिखेंगे तो doesn't have that impression. हाँ, तो एक अगर हमको पेपर देखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बीच में देख सकते हैं. हाँ, वो ठीक है सर. टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हुए ना, I should be like this or it should be like this. This is fine. Or this one? This? No, too close. आपका पूरा top is getting cut off. हाँ, this is fine. Okay. Perfect. सेंटर में आ जाओ क्या? सेंटर में होना चाहिए ना? हाँ. It's okay? Yes. तो what time do I start now? I'm going to mute my microphone so that आपको कोई disturbance मेरे end से ना आए. And then I'll give you a thumbs up. फिर आप चालू करना. नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली एंड चेयरमैन ऑफ इंडो यूरोपियन कॉन्क्लेव्स. वी हैव बीन डूइंग इंडो यूरोपियन टीचिंग कोर्स. आजकल जमाना, इस समय जो हम लोग, the whole world is suffering and we all know what we are talking about. We are talking about COVID-19. What is COVID-19? COVID-19 is one of the strain of coronavirus disease जो सार्स के रूप में पहले भी आ चुका है 2008 में और 2002 में. लेकिन उसमें सिचुएशन ये है कि इस समय की जो महामारी है, which has been declared as pandemic by World Health Organization and epidemic by Ministry of Health and Family Welfare, is actually we are all still struggling. The whole world is under lockdown. अपने भारत में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू किया था, जो पहले 14 अप्रैल तक था. सबको पता है कि अब इसको 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. आज तारीख है 16 अप्रैल. कोविड-19 के बारे में आप लोग टेलीविजन पे सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मेडिकल ओपिनियन के हिसाब से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं. But before that, I would like to give you a background. As of today, we have 21 lakhs people infected worldwide and 1,36,992 deaths. I've just checked the figure from WHO. 1,36,992 deaths हो चुकी हैं वर्ल्ड वाइड. 21 लाख लोग, more than 2 million. This is the World War III. I was talking and I was reading many articles. Those people who have seen World War II, those elderly people, those who are in 80s, like my father, they said this is looking like a World War III. But the difference is, the World War II or 1 में military was under target. Here, our general population is the target. This is a very bad situation. But we don't have to panic. We have to fight. We have to come out of this. कोरोना वायरस डिजीज जो कि वुहान से शुरू हुई, वुहान चाइना में, जिसका नाम शायद पब्लिक को, आम आदमी को पहले पता भी नहीं था, वुहान से शुरू हुई. और उस समय जैसे लोग कहते हैं नवंबर में पहला केस आ गया था, लेकिन दिसंबर में जागरूक हुआ. WHO ने उसको कॉमन फ्लू से एज ए सीरियस डिजीज करने में थोड़ा डिले किया. ट्रैवल लोग चलते रहे. इटली वॉज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री विच वॉज अफेक्टेड, फार अवे फ्रॉम चाइना. Why? We don't know. There was some views and some later people thought कि उस समय कुछ चाइना से कुछ लोग गए थे. We said people were hugging each other as a part of friendship, but whether that was the cause, we don't know. But most of the death was seen initially in China and then later Italy. Europe was still not affected. The first case in India came on 30th of January, and the first death happened on 12th of March. We celebrated Holi reasonably well, not so bad, because that was not the time of lockdown. उसके बाद जो 22 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया, ये देखते हुए कि उस समय तक इटली में और बाकी जर्मनी में, फ्रांस में और धीरे धीरे अमेरिका भी ग्रसित होता जा रहा था. मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप had a visit to India during the time when the corona had already started. He never expected that the things will go so bad. In fact, he came to India despite the corona disease going on. He took it little lightly, as people say. Lockdown was a little late. आज की फिगर के हिसाब से भारत में 12,759 केसेस हो चुके हैं. Every day about 900 cases, 800 cases, 700 cases, 1000 cases.
We are still better than others because we have only 423 documented deaths. We are better than others. Why? Because America, the world largest economy, 25 trillion economy. How many number of cases? 6,44,823. Out of 21 lakhs, 6,50,000 are in America only. With 28,000 deaths. In one day, people are losing life to 2,000 people per day are dying in USA, the most developed country of the world. What is this happening? Spain, Europe I'm talking of Western Europe, fully developed. 1,82,000 infected people, 19,000 deaths. Italy is slightly containing now. इटली जो सबसे ऊपर था, अभी इस समय 1,65,000 केसेस है उनके यहाँ, उसके ऊपर स्पेन भी जा चुका है और ये अमेरिका भी जा चुका है. फ्रांस 1,47,000, 17,000 डेथ्स. यूके, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कुड नॉट प्रिवेंट हिमसेल्फ. मिस्टर Prince Charles also was infected. Initially, all these countries took it lightly, and their lockdown was little late. We had a webinar yesterday with Italian cardiologist. We said why Italy was most affected initially. They said our lockdown was late. They all thought it was simple flu. In fact, it was known as common flu. But Mr. Donald Trump later on he says it's China virus. Now we are all suffering. The whole world, out of 6 billion people in the world, more than 3/4 are under lockdown. Never ever in my knowledge, and in fact the whole century, this has happened. China says that we have contained. They already say the only 3,000 deaths. People are not believing. Doesn't matter. But we have to save our country. पब्लिक को बचाना है, अपने भारतीयों को बचाना है, लॉकडाउन का पालन करना है, जैसा कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बताया हुआ है. ये पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? दिस इज नॉट अ महामारी. एपिडेमिक और पैंडेमिक का डिफरेंस बताना चाहूंगा पब्लिक के लिए. स्मॉल वीडियो आई वांट टू शेयर विद यू सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर. एपिडेमिक मतलब ये होता है जब कोई बीमारी एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाए इन ए वन रीजन, दैट इज नोन एज एपिडेमिक. जब यही बीमारी अगर पूरे विश्व में फैल जाए, कई कंट्रीज में एक साथ, उसको कहते हैं पैंडेमिक महामारी. WHO डिक्लेयर्ड इज पैंडेमिक. 208 से 210 कंट्रीज ग्रसित हैं. Why this virus is so much dangerous? The reason is its infectivity rate is very high. शुरू में लोगों ने कहा कि this is only on the cough या स्नीजिंग, जब खांसी करेगा और 1 मीटर से पास रहेंगे तो आपको होगा. I told on television on 17th March and 26th March that there is a possibility that asymptomatic carrier, कहने को जिसको आज बीमारी नहीं है, वो भी दूसरे को ग्रसित कर सकता है, संक्रमित कर सकता है. लोगों ने विश्वास नहीं किया. मैंने कहा जब WHO गाइडलाइन आएगी तभी हम विश्वास करेंगे. हम लोग के पास भी वी हैव कॉमन सेंस. द वायरस डिजीज, अगर आज किसी को इन्फेक्शन होता है, उसको बुखार 5 दिन बाद आता है. इस केस में इन्फेक्शन के 5 या 6 दिन बाद बुखार आएगा, फिर खांसी आएगी, फिर सूखी खांसी आएगी और उसके बाद सांस की बीमारी आएगी. तो जो पीरियड है, जहां इंक्यूबेशन पीरियड है, जिस समय वायरस आ तो गया है, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन इन्फेक्ट. नोबडी बिलीव्ड मी. उस समय जब लॉकडाउन हुआ 22 मार्च को, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उस समय कई प्रोग्राम्स हुए. 26 मार्च को मैंने प्रोग्राम किया, 29 मार्च को प्रोग्राम किया. उस समय केवल लॉकडाउन था, सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही थी. दैट मीन्स यू हैव टू डिस्टेंस योरसेल्फ. 1 मीटर से 2 मीटर से दूर रहिए, बाकी यू आर ऑल राइट. ओनली हेल्थ केयर वर्कर्स को कहा गया था कि मास्क पहने. मैंने उस समय भी कहा था कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर सारे गरीब लोगों को मास्क तो नहीं पहना सकते. एसेंशियल्स के लोग बाहर निकल रहे हैं, मदर डेयरी जा रहे हैं, सब्जी लेने बाहर जाना अलाउड है, सब्जी वाला आपके पास आ रहा है, कुछ लोग घर में लोग आ रहे हैं, कुछ मेड्स आ रही हैं. कम करना है, लेकिन कुछ लोग तो आने से आप रोक नहीं पाएंगे ना, बिकॉज यू नीड बेयर एसेंशियल्स इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन. तो आई एडवाइज एट दैट टाइम पर्सनली ऑन टेलीविजन दैट एवरीबडी, इफ अगर हम लोग मैंडेटरी कर दें सबको मास्क पहनना, तो मास्क तो बहुत महंगा आता है, उसमें मास्क वैसे ही महंगा हो गया था. आई एम टॉकिंग ऑफ 26 मार्च. 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था, मैं बताना चाहता हूं. उस समय मैंने कहा रुमालिंग शुरू कर दिया जाए. आई यूज द वर्ड रुमालिंग, वी हैव रिकॉर्डिंग. हमने कहा रुमालिंग शुरू करते हैं. उस समय एक और इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया था, जब आपने देखा होगा कि दिल्ली में आनंद विहार बस टर्मिनल पे काफी लोग एक साथ मात्रा में लोग बाहर जाना चाह रहे थे. तो लोग कहने लगे व्हाट इज दिस लॉकडाउन, पीपल आर मूविंग आउट, नो सोशल डिस्टेंसिंग. मैंने कहा एक ही काम हमें करना चाहिए, सबसे कहा जाए कि अंगोछा पहन ले, रुमाल पहन ले, एंड देन दे कैन मूव आउट.
तो लोगों का ये कैसे, व्हाट इज दिस, हमने कहा दिस कैन बी एयरबोर्न। जब आप सोशल डिस्टेंसिंग कैनॉट बी कंपल्सरी, कैनॉट बी मैंडेटरी, इट इज नॉट अंडर द पुलिस एट दैट टाइम, तो लोग कैसे करेंगे, आप रुमाली करें। भगवान की कृपा से मैंने देखा कि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लास्ट टाइम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गमछा पहन के किया, उन्होंने कहा सबसे गमछा, नाउ इट इज मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट दैट एवरीबॉडी हैज टू वियर आइदर मास्क और रुमाल और गमछा और अंगोछा, which I told on 26 March. I'm happy that this voice was heard by the people, and now this is mandatory not only in India but many other countries in Europe. I spoke to Italian cardiologists yesterday. मैंने उनसे पूछा उनके क्या लॉकडाउन की स्थिति है, उन्होंने भी कहा कि हमारे मैंडेटरी दैट एवरीबॉडी इज गोइंग आउट फॉर एनी पर्पस डिस्पाइट लॉकडाउन, उसको मास्क या कुछ फेस कवर करना है। देयर आर टू वेज ऑफ इन्फेक्शन, वन इज व्हेन यू समबडी स्नीजिंग, किसी को खांसी आई, छींक आई, उससे आपका वायरस चला गया। दूसरा है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, यानी कि हवा में कितनी देर ये वायरस रुक सकता है। शुरू में WHO ने कहा कि हवा में नहीं रुकता है, इट इज नॉट एयरबॉर्न। I at that time also raised a suspicion. Sorry to that tell you because it's a history and we are facing so much of problem. I said airborne or not airborne we don't know, but what is the harm अगर पब्लिक में सबको कहा जाए everybody face should be covered, even those who are traveling for some reasons. अब ये हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भारत का और भारत के सबका, और जो कि आप पर ये है इस समय ये सिचुएशन है, लॉकडाउन हैज बीन इंक्रीज टू 3rd में, और ये कहा गया कि जो भी बाहर निकलेगा एवरीबॉडी हैज टू वियर आइदर मास्क और रुमाल और अंगोछा और गमछा। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गाइडलाइंस है, उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की, अपील करी है। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, क्या आगे और बढ़ेगा वी डोंट नो। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं मेडिकल पार्ट इसका। मेडिकल पार्ट में ऐसा है कि जो कोविड-19 पेशेंट्स होते हैं, दो बातें, तो प्रिवेंशन है कि कैसे रोका जाए, आपको ना हो जाए, हमें ना हो जाए, पब्लिक को ना हो जाए, केसेस ना बढ़ाए। तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट आती है। टेस्टिंग, अब इनको पता नहीं कितने लोग बीमार हैं, अब टेस्टिंग का रेट जो वर्ल्ड की मापदंड है वो कितना है, ये फिगर्स क्लियर नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में टेस्टिंग की अब बढ़ा दिया गया सिस्टम। इसकी टेस्टिंग किस तरह होती है? इसकी टेस्टिंग होती है थ्रोट स्वैब से। थ्रोट से स्वैब निकाला जाता है। थ्रोट स्वैब मतलब ये बलगम जो थोड़ा उससे स्वैब निकालते हैं, उसको हम एक जेनेटिक एनालिसिस कहते हैं, वो PCR टेस्ट कहते हैं, जो थोड़ा महंगा किट आता है। किट लाने में बहुत टाइम लगा हम लोग को, और जो बहुत उस किट से जांच की रिपोर्ट करीब 24 घंटे में आ जाती है। दूसरा टेस्ट होता है रैपिड टेस्टिंग। रैपिड मतलब जिसको एक्सपोजर हो गया तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है। वो एंटीबॉडी जो होती है IgM IgG एंटीबॉडी होती है, वो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे प्रोपोनिन टेस्ट करते हैं, जैसे ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, उसी तरह किट है। हल्का सा ब्लड डाला और 15-20 मिनट में, आधे 10-5 मिनट में पता लग जाता है वेदर यू आर एक्सपोज्ड और नॉट। लेकिन वो एक्सपोजर है, उसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों होते हैं। दिस इज नोन एज रैपिड टेस्टिंग। हमारे भारत में रैपिड टेस्टिंग अभी आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से जल्दी ही आने वाली है, जो करके कम्युनिटी लेवल पे करा जाए। PCR टेस्टिंग इज अ वेरी गुड टेस्टिंग, इट्स एक्सपेंसिव। अभी मैं वेबिनार कर रहा था, जो कोविड पेशेंट, ये तो हो गया प्रिवेंशन के लिए कि टेस्ट करके पता लग गया, जिसको कोविड हो जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, उसको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा क्योंकि उसको हल्का बुखार है। अब मैं बताना चाहता हूं, कोविड-19 के पेशेंट्स, कोरोना वायरस डिजीज के पेशेंट, सारे पेशेंट सीरियस नहीं होते। 80% पेशेंट नॉर्मल रहते हैं, केवल 20% पेशेंट सीरियस हो जाते हैं। पहले कहा जाता था कि 80 साल के ऊपर जो होंगे उन्हीं को सीरियस होंगे, लेकिन अभी डाटा देखा गया है, अपने इंडिया का डेटा देखा गया, इवन 60 साल के नीचे के लोगों को भी बीमारी हुई है। लेकिन ये बात सही है कि जो 70 साल के ऊपर या 80 साल के ऊपर है, उनको बीमारी सीरियस होने की संभावना ज्यादा है। सीरियस मतलब केवल खांसी बुखार नहीं, उनको निमोनिया भी हो जाए। निमोनिया हो गया, फेफड़ा में आ गया, फिर आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई, फिर आपको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ेगी। पहले नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जो कि प्रेशराइज मास्क होता है, फिर आपको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे केसेस के 5% केसेस हैं, और कुछ परसेंटेज केसेस ऐसे भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एज। आप कुछ भी कर लीजिए, सबसे बड़े अस्पताल में इलाज करा लीजिए, वेंटिलेटर पे रख लीजिए, उसके बाद भी मृत्यु है। इसीलिए इटली, अमेरिका में इतनी हाई मृत्यु दर है, बिकॉज देयर नंबर्स आर हाई, और वहां पे इतने आईसीयू की जरूरत पड़ रही है। बेड्स आर नॉट अवेलेबल। आई वाज टॉकिंग टू इटालियन डॉक्टर, ही सेड हमारा एक पूरा एक एरिया आईसीयू का कन्वर्ट कर दिया गया है, किसमें? कोविड वार्ड में। हार्ट के पेशेंट्स रेगुलर को कम किया गया है, जिनको इमरजेंसी को नहीं इलाज किया जा रहा है। तो प्रिवेंशन के लिए पब्लिक क्या करे? अब आम पब्लिक की दिक्कत है कि उसको डर लग रहा है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2 बातें यूज की, 2P,
पहला पी प्रिकॉशन, दूसरा पी पैनिक। डोंट पैनिक, टेक प्रिकॉशन। डोंट पैनिक, टेक प्रिकॉशन। अब प्रिकॉशन क्या क्या हो सकते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग इज वन, जो कि बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आप 1 मीटर के अंदर आ ही जाते हैं लोग से बात करते करते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मास्क पहनना। मैं सारे हेल्थ केयर वर्कर से कहूंगा कि जब भी आप कहीं पे जाए, निकले बाहर, एक मास्क पहन के रहें। मैं यहाँ कमरे में बैठा हूं तो इस कमरे में अकेला हूं और ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग रूम है, तो यहां पर ज्यादा लोग नहीं आते हैं, तो आई हैव लिबर्टी टू टेक ऑफ माय मास्क। तो पहला सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा मास्क। और घर से बाहर निकले गरीब जनता रुमाल या अंगोछा या गमछा, जो मैंने पहले बताया कि मैंने भी 26 मार्च को भी और 17 मार्च को 29 मार्च को कहा था, बाद में मैंडेटरी किया गया। ये तो प्रिवेंशन की बात हुई। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए क्या करें? सबसे ज्यादा वल्नरेबल इस समय हेल्थ केयर वर्कर है। हेल्थ केयर वर्कर 2 तरह के हैं। पहला हेल्थ केयर वर्कर है जो एक्चुअली कोविड-19 पेशेंट को देख रहा है, उनके लिए पीपीई बनाई गई है। एक पूरा चश्मा है, हेड कवर है, शील्ड है, आगे पूरा फुल गाउन है, ग्लव्स है और पैर में जूते के ऊपर कवर्ड है। दिस इज कंप्लीट शील्डिंग। ऐसे लोगों को खास करके एहतियात बरतने की जरूरत है। और इसमें पीपीई आजकल बहुत बिक भी रहे हैं, कुछ महंगे हैं, अलग अलग क्वालिटी के आ गए हैं, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन उनको पहनना जरूरी है। दूसरे हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, जैसे मैं, आई एम ए कार्डियोलॉजिस्ट, आई गो टू द वार्ड्स, टू द राउंड्स, बट आई डोंट गो डायरेक्टली टू द कोविड पेशेंट। दोनों के लिए ये गाइडलाइन है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दोनों तरह के लोगों को 400 मिलीग्राम सुबह शाम और 400 मिलीग्राम हर हफ्ते 7 हफ्ते तक खानी है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में काफी लोगों को भय हुआ कि ये टॉक्सिसिटी करती है, इससे कार्डियक टॉक्सिसिटी होती है, एरिथमिया हो जाता है, क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता है, तो ये सारे भय खत्म हो चुके हैं। यस, लाइटली टॉक्सिक फॉर हार्ट पेशेंट्स। अगर हार्ट पेशेंट आप खुद हैं और हेल्थ केयर वर्कर हैं तो आप एहतियात बरतिए, ईसीजी कराइए, उसके बाद अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके खाइए। और जो यंग पेशेंट है उनको ईसीजी नॉर्मल है तो आराम से खा लेना चाहिए। ये तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात। बाकी क्या क्या इलाज है? कोविड-19 के पेशेंट्स जो होते हैं, जब भर्ती होते हैं तो 2 तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। पहला प्रोटोकॉल होता है जब मरीज को पहले देखा गया अस्पताल में। हमारा हॉस्पिटल भी, बड़े बड़े हॉस्पिटल इस समय जो हैं, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, वो भी कोविड-19 हॉस्पिटल में एग्रीगेशन हो चुका है, आइसोलेट कर दिए गए वार्ड। तो जिस पर सस्पेशन होता है उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। जो सीरियस नहीं होते हैं वो आइसोलेशन वार्ड में रहते हैं, जिनका कोविड-19 पॉजिटिव आ गया है। जो सीरियस हो जाते हैं उनको आइसोलेशन आईसीयू में रखते हैं। इलाज वर्ल्ड वाइड, मैंने कल इटली से भी सीखा और लोगों से बात की, 2-3 तरह के इलाज हैं। एक तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, जो दोनों एंटीवायरल प्रूव हो रहे हैं। कुछ एंटीवायरल मेडिसिन भी दी जाती है। जो सीरियस हो जाते हैं उनको प्लाज्मा ट्रीटमेंट देते हैं। कोविड-19 का जो पेशेंट ठीक हो चुका है उसका ब्लड निकालते हैं, उसके अंदर एंटीबॉडीज बनती है, उसका प्लाज्मा निकालते हैं और सीरियस पेशेंट चढ़ाया जाता है। इसमें काफी सक्सेस मिली है। और भी ज्यादा सीरियस होते तो वेंटिलेटर लग जाता है और हम कुछ लोगों को बचा नहीं पाते। इस समय की स्थिति यह है। तो प्रोफाइलैक्सिस, प्रिवेंशन के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो आम जनता जिसको करना चाहिए, कई मिथ हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना। कोई भी जब वायरल इलाज होता था, आप याद करिए 20 साल पहले, 10 साल पहले वायरस डिजीज को बड़ा सिंपल माना जाता है। जुकाम हुआ, कोई खास बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको एंटीबायोटिक की जरूरत भी नहीं है। वो वायरस डिजीज ऐसी होती है कि बॉडी के अंदर खुद की इम्यूनिटी होती है, वायरस के लक्षण को धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो सिंपल वायरस डिजीज होती है, खांसी, जुकाम, बुखार 5-6 दिन में ठीक हो जाता है ऑटोमेटिक, उसमें कोई इलाज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हल्का क्रोसिन खा लेते हैं, पैरासिटामोल खा लेते हैं, बुखार आए तो बुखार दवा खा लेते हैं, एंटीबायोटिक तक की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो सिंपल वायरस होता है। वो कारण क्या है कि उस समय उतनी बॉडी में इम्यूनिटी होती है कि उस वायरस को खत्म कर दे, बॉडी की इम्यूनिटी। अब ये बॉडी की इम्यूनिटी जो है हमारी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये वायरस कोविड-19 कुछ ज्यादा खतरनाक है। ये लंग्स के अंदर के सेल्स में घुस जाता है और वहां पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देता है, और हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीम को डिसोसिएट कर देता है, जिससे कि आप बेस्ट वेंटिलेटर भी लगा दिए तब भी मरीज की जान बचने में दिक्कत होती है। तो आप घबराइए नहीं, आपको सबको इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका क्या है? कई दवाइयां हैं, वैसे विटामिन जितने भी है सारे इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। विटामिन सी कुछ ज्यादा ही बताया गया है कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। 400 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, कुछ 500 मिलीग्राम की भी आती है, कुछ अलग अलग फॉर्मुलेशन में। लेकिन हम स्टडी देख रहे थे, जब इम्यूनिटी बढ़ाने की स्टडी है वो तो 10 ग्राम कहता है पर डे। 10 ग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मैं कहता हूं, जो हमने मेरी नॉलेज के हिसाब से 2 टिकिया 400 मिलीग्राम की सुबह दोपहर शाम खाइए, रेगुलर खाते ही रहिए, कोई नुकसान नहीं करती। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हेल्थ केयर वर्कर के लिए,
बाकी आप संतरा है, मौसमी है, जूस है, वो पीजिए। कुछ लोग कहते हैं गर्म पानी अगर रेगुलर पीते रहे तो क्या फायदा होगा, कहना मुश्किल है, नुकसान भी नहीं है कोई। गर्म मतलब उबलता हुआ पानी थोड़ी पीना आपको, आप गुनगुना पानी पीजिए, कोई नुकसान नहीं है। आई फील देयर इज नथिंग, नो कॉन्ट्रैक्ट, इज फ्री ऑफ कॉस्ट, मेहनत भी नहीं करनी है। लोग कहते हैं वायरस पहले यहाँ गले में आता है और गर्म से ठीक हो जाता है। अभी नया स्टेज, अर्ली स्टेज है टू टेल ऑल दिस थिंग्स, लेकिन देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप बाहर घर से निकलें और घर वापस पहुंचे तो कपड़े बदल लें, अपने बाकी लोगों को इन्फेक्ट ना हो। अगर बाई चांस किसी वायरस आपकी तरफ से गुजर गया, आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ लेकिन हो सकता है, तो पूरे कपड़े गर्म पानी से धो के डालिए जब भी वापस घर आए। घर के अंदर जितने भी आपके लोग आ रहे हैं, जो काम करने वाले लोग आ रहे हैं, उनको हर समय मास्क पहनाइए। कोशिश करिए कि ज्यादा लोग घर के अंदर ना आए। एल्डरली जितने भी हैं, अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा उन्होंने कहा 7 चीजों का साथ चाहिए। उन्होंने 7 चीजें गिनाई, उसमें 7 चीजों में एक सबसे बड़ी बात ये भी कही थी, अपने घर के अंदर जो वयस्क लोग हैं, बड़े लोग हैं, 70 साल से ऊपर, उनका खास ध्यान रखिए। उनको संतरा, मौसमी, जूस पिलाते रहिए, उनको विटामिन सी खिलाइए। अगर वो हेल्थ केयर वर्कर भी है तो उनको भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देनी चाहिए। नहीं भी है तो बाकी उनको उनके खाना पूरा बढ़िया होना चाहिए। एक्सरसाइज घर के अंदर करते रहना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहें कि अगर बाई चांस किसी को लंग प्रॉब्लम होती है तो इस तरह ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो लंग की कैपेसिटी बनी रहती है। स्पायरोमेट्री कराइए, स्पायरोमेट्री एक तरह का होता है जिससे ऊपर नीचे बढ़ता है, तो वो कराते रहिए जिससे कि उनकी लंग कैपेसिटी बढ़ती रहे। बाकी चीजों उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर जो 7 चीजों का साथ चाहिए प्रधानमंत्री जी को, वो 7 चीजें एक ये भी है कि जितने भी हेल्थ केयर डॉक्टर नर्सेज है उनकी इज्जत करिए, पुलिस वालों की इज्जत करिए, किसी को टेंशन मत करिए, लॉकडाउन में रहिए, घर से बाहर ना निकलिए। तो 7 चीजों का साथ उन्होंने मांगा था। मैं यही बताना चाहता हूं आपके इस माध्यम से, डोंट पैनिक, टेक प्रिकॉशन। ये धीरे धीरे चला जाएगा। लॉकडाउन 3 मई तक है, उसका पालन करिए। और जो कोविड-19 आप पेशेंट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, सबको डर लगा हुआ है कि हमें ना हो जाए। लेकिन अगर आप इस तरह का मास्क पहन के घर से बाहर निकलेंगे, पब्लिक को समझाएंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, तो हमारा भारतवर्ष, जो कि अभी जैसे मैंने बताया कि जो कंडीशन है, फिर से मैं बताना चाहता हूं, इंडिया में अभी तक केवल 12,000 केसेस आए हैं, केवल अमेरिका में 6 लाख केसेस हैं। जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इकोनॉमी इज सफरिंग, उनके 28,000 लोगों की डेथ हो चुकी है, हमारा केवल आंकड़ा 423 का है। लेकिन हमको और ध्यान देना है जिससे जल्दी जल्दी हम लोग इस प्रकोप से निकले। भगवान का आशीर्वाद चाहिए। हम लोग सब रिलीजियस लोग हैं भारत के, प्योर वेजिटेरियन का फॉलो करिए। आई एम प्योर वेजिटेरियन। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग वेजिटेरियन बने और खाना पीना नॉर्मल खाएं, बढ़िया खाएं, मस्त रहें, टेंशन फ्री रहें। लॉकडाउन का इस्तेमाल करिए। अभी मैं देख रहा था टेलीविजन पे, लॉकडाउन में 2-3 तरह के लोग हैं। एक तो टेंशन में रहते हैं घर के अंदर, अरे कब लॉकडाउन खुलेगा, कब नहीं खुलेगा। दूसरे वो है कि जो ठीक है काम तो कर रहे हैं लेकिन जनरल काम कर रहे हैं। तीसरे वो है कि इसको ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, अरे खाली हो गए तो लगनी करिए। स्टूडेंट से कहूंगा पढ़ाई करें, एक्स्ट्रा पढ़ाई करें, जो आगे पढ़ाया जाने वाला वो पढ़ते रहे। और अगर स्टूडेंट नहीं है, इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, वो नई किताबें पढ़ें, कुछ पढ़ाई करें। किसी के प्रोजेक्ट्स वापस रह गए हैं, जो टाइम नहीं मिल पाता था, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पूरे कर लीजिए। आई एम वेरी हैप्पी कि अगर लॉकडाउन है तो हमारे रेगुलर पेशेंट्स कम आ रहे हैं, तो कम से कम हमारे पेंडिंग काम पूरे हो रहे हैं। ठीक है, गरीबों को बहुत नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो रोज पैसा कमाता है, रोज घर जाता है, रोज की दिहाड़ी करता है, उनके लिए बड़ा दिक्कत है। और इस समय मैं चाहूंगा, और हो भी रहा है, अपने जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी गवर्नमेंट हैं, स्टेट की है, गवर्नमेंट की है, यूनियन गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री जी हैं, अलग अलग लोग, सोशल वर्कर हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, फ्री खाना बांट रहे हैं, उनकी दुविधाएं उनको कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही थी साथ में कि अपने साथ जो काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखिए, यानी कि जो आपके अंडर में एम्प्लॉय है, प्लीज कीप सॉफ्ट कॉर्नर विद देम। Thank you very much, Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital, New Delhi, on 16th of April at 8:30 p.m. giving you a small inputs about the overall corona. I'll come back to you with further things. और एक दवा जो अभी टेस्ट नहीं हुई है, वैक्सीन आने में अभी टाइम लगेगा, 6 महीना। कुछ एनिमल ट्रायल्स हो चुके हैं लेकिन अभी ह्यूमन ट्रायल नहीं हुए हैं। इवरमेक्टिन नाम की दवा है जो एंटी पैरासाइट है, इसको ह्यूमन ट्रायल में आ जाए, इसने 48 घंटे के अंदर वायरस का सफाया कर देती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। अगर इसको ले आएंगे, इट कैन कम बेटर देन वैक्सीन। ज्यादा तेज, जिसको हो गया उसको फटाफट इसका इलाज हो गया। जैसे कि आपने एंटीबायोटिक खाई, बैक्टीरिया चला गया, उसी तरह से ये है, आपने ये दवा खाई, वायरस चला गया, इवरमेक्टिन के नाम से। इसके ह्यूमन ट्रायल बाकी है। आई थिंक आई हैव टू स्टॉप हियर। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, 16th अप्रैल। मुझे जानकारी मेरी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। विल कम बैक टू यू वेरी सून, 16th of April on Thursday. बाय बाय, नमस्कार।